Hello friends, my name is Ashwini. I am a chartered accountant by profession. Today we are going to understand some important concepts relating to accounting. Friends, this video is primarily for 11th standard students. So without wasting any time, let's get back to the subject matter. What do you mean by bookkeeping? Bookkeeping means recording financial transactions in books of accounts. Example, purchase of goods for resale by the trader. Second, meaning of accountancy. Accountancy is the act of recording, classifying, and summarizing transactions of an organization and interpreting the results thereof. Friends, there's a difference between bookkeeping and accountancy. We are going to find that in later stage of our presentation. Now let's move to our next slide, which states the objectives of bookkeeping. Okay, the first objective of bookkeeping is systematic record. Friends, in today's world, organization cannot prove anything if they do not have records. So record plays a vital role for every organization. Second, to protect business property. Friends, सोचो अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगे तो how would you prove that that particular asset or that particular liability is owned by you, right? इसीलिए बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है. Third, ascertainment of profit or loss. uh, that's quite natural. Unless and until you maintain a record, you cannot ascertain the profit or loss of a business. Then fourth, ascertainment of the financial position of business. A financial position means assets minus liabilities. That is basically the net worth of a business. अगर records book keeping ही नहीं होगी, so we cannot assess the net worth of a business. Then to facilitate decision making, quite obvious, अगर रिकॉर्ड हो गए तो ही हम डिसीजन ले पाएंगे क्या कि बिजनेस के पास पैसा है नहीं है, उस पैसे से क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता. Then function as an information system. Yes, bookkeeping definitely provides information to lot of stakeholders like owners, stakeholders, then creditors, then the management, etc. Ascertainment of tax liability. Then the subsequent objective is ascertainment of tax liability of a business. फ्रेंड्स, अगर बुक कीपिंग ही नहीं होगा तो कंपनी अपना टैक्स कंप्यूटेशन ही नहीं कर पाएगा. That's why that is one of the objective of bookkeeping. Then next slide talks about importance and utility of bookkeeping. Friends, बिजनेस में कई तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे ओनर्स, देन क्रेडिटर्स, देन गवर्नमेंट, देन पब्लिक. सो हर एक के मुताबिक उसका इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी बदलता है. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग टू बिजनेस ओनर्स. फर्स्ट, obvious, ascertainment of profitability of business. Financial stability means generally means that whether business is financially sound, क्या वो कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है. Then liquidity of business. Liquidity again relates to cash flows. Friends, मैंने books of accounts में daters दिख रहे हैं, but are those daters really realized? That can be understood with the help of bookkeeping. Okay, that determine the progress of years in determination of the progress of business in comparison with previous years. Yes, and other firms in industry. Quite simple to take rational decision. Quite obvious, because owners means the managers of business, and they need to take decisions on the basis of data that is available. Hence bookkeeping is important to them. Then to the management, first objective would obviously be evaluate efficiency of management of business. Efficiency matlab whether business is able to meet its objective, that is to generate profit, और ऐसे ना हो कि बिजनेस खोल दिया और लॉस ही हो रहा है. सो मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इवेलुएट करना बहुत ही ज़रूरी है. देन to determine the assets, liabilities and capital on any date. Yeah, quite obvious, quite simple. And forecast of business, obviously future strategies इसमें cover हो गए. Then to the creditors, ascertainment of financial position of business. Friends, basically creditors के साथ creditors को एक ही फ़ायदा रहता है कि whether business would be able to repay their debts. That is why bookkeeping is important to them.
देन टू द एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली टू नो द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट पे ही उनका बोनस या उनके जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रहता है बिजनेस को टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़, that would be honored only if business is able to generate profits. And third one would be a certain capacity of organization in providing perks मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट कैश में ना देते हुए काइंड में देना, फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज, दैट इज़ अ पर्क. Then let's see the importance to the government. First is quite simple, know the profit of business. Second thing, determine the development and expansion of industry, quite obvious. So friends, ये 5 लोग होते हैं जिनके लिए बुक कीपिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड गवर्नमेंट के लिए और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू नो दी टैक्स पेबल, दैट इज़ टू नो दी taxable income of business, but that would ultimately get covered in the first objective, to know the profits of the business. उसी में ये कवर हो जाएगा. Then now let's see the difference between bookkeeping and accountancy. Bookkeeping, it's an art of recording transaction. Accountancy, it's an act of recording, classifying, summarizing and interpreting results. So friends, bookkeeping में सिर्फ recording होता है, उसका classification, summarizing, interpretation कुछ नहीं होता है. Whereas in accountancy, you are recording it in accordance with principles of accountancy, then classifying it, then summarizing it, and then interpreting the results. Then bookkeeping, you need not have knowledge of accounting for it. Accountant must be well acquainted with the knowledge of accountancy. That is, accountancy means accounting standards या accounting conventions वगैरह होते हैं, उसका knowledge होना accountant के लिए बहुत ज़रूरी है. Then bookkeeper is supposed to record the transactions and accumulate the figures. Accountant is supposed to summarize and interpret these figures and present in an intelligible manner. That is, intelligible manner का मतलब होता है to classify it in accordance with accounting convention principles and then interpreting its results. Then bookkeeping is the first step, obvious. Accounting is the second step. Bookkeeping does not interpret business results, obvious. Accountancy interprets business results. ये 4 या 5 differences है जो बहुत important है. Then now let's understand few basic terms relating to accountancy. Now what do you mean by transaction? Transaction means exchange of goods for money or money's worth. इसमें बार्टर सिस्टम भी कवर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मनी इज़ वर्थ. देर आर 2 types of transaction. One is cash transaction and one is credit transaction. Cash transaction immediately बायर सेलर को पैसा देता है और गुड्स खरीदता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बायर कुछ दिनों बाद सेलर को पेमेंट करता है. ओके. गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? ऑल कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स. फॉर एग्जांपल ट्रेडर है, वो बच्चों के खिलौने बेच रहा है. So for that particular trader, those toys would be goods. Then what do you mean by profit and loss? Revenue in excess of expense is known as profit. Expense in excess of revenue is equal to loss. Simple. हमने ये बेसिक नॉलेज जो है वो स्कूल में भी सीखी है, जहाँ पे हम सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस बोलते थे. सेम ही है, बट बिजनेस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल प्राइस वन एस्पेक्ट होता है, देन परचेज प्राइस अनदर एस्पेक्ट होता है, उसके बाद एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज. इसीलिए वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस एंड और एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू. ओके. देन व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय बिजनेस विदाउट इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट. फ्रेंड्स, एसेट्स लॉजिकली वो चीज़ होती है जिससे बिजनेस का रेवेन्यू आता है. फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अपने लिए मशीनरी खरीदते हैं. सो दैट मशीनरी वुड बी एन असेट फॉर देम, बिकॉज विथ द यूज़ ऑफ मशीनरी दे वुड बी जनरेटिंग रेवेन्यू. उसमें वो प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में और उससे रेवेन्यू आएगा. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स. फिक्स असेट्स, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो मशीनरी खरीदती है, तो मशीनरी उनके लिए फिक्स असेट बन जाएगा. करंट असेट्स वो होते हैं जो चेंज होते रहता है, जिसका वैल्यू
आई मीन करंट एसेट्स नॉर्मली एक साल के अंदर रियलाइज भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, वो करंट एसेट्स है. कैश करंट एसेट्स है. देन टेंजिबल एसेट्स, assets which we can see physically. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी होती है, तो वो मशीनरी हम देख सकते हैं. दैट इज़ नोन एज टैंजिबल एसेट्स. इनटैंजिबल एसेट्स एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल. गुडविल फ्रेंड्स हम देख नहीं सकते हैं, बट स्टिल बिजनेस का अपना एक रेपुटेशन होता है मार्केट में, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है. वी कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर थिंग. So goodwill is one of the goodwill is an example of intangible asset. Then what do you mean by liabilities? Amount payable by business firm to outsiders. Basically, liability means any amount that is payable by business to an outsider. Okay, तो लाइबिलिटीज़ में भी क्लासिफिकेशन होता है. फिक्स लाइबिलिटीज़, जैसे मानो मैंने बैंक से बिजनेस ने 2 लाख का लोन ले लिया, तो वो 2 लाख रुपए बिजनेस का फिक्स लाइबिलिटी होगा. करंट लाइबिलिटीज़, मानो मैंने क्रेडिटर्स से माल ख़रीदा है, उसको पेमेंट नहीं किया, बट दैट पेमेंट वुड बी मेड इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के साइकिल में ही उसका पेमेंट होगा. तो so the amount that is due to creditor is known as current liability. Contingent liability, contingent का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. फॉर एग्जांपल आज के डेट में कंपनीज़ के अगेंस्ट मानो कोई सूट फाइल होता है. मानो कोई कंपनी है वो एयर पोल्यूशन कर रही है, सो वहाँ पे जो अगर मानो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लोकेटेड है चाकन में, लेकिन वो बहुत पोल्यूशन फैला रही है, तो आजू बाजू के जो रहने वाले लोग हैं वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं कि कंपनी ने इसके लिए हमको कॉम्पेंसेट करना चाहिए. तो वो जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट होगा दैट वुड बी ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि पहले पब्लिक उसके लिए केस फाइल करेगा. अगर वो केस कंपनी के अगेंस्ट जाता है तो ही कंपनी को पैसे देने होंगे, वरना नहीं. तब तक कंपनी ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लाइबिलिटी नहीं रिकग्नाइज करेगी. वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में वो अमाउंट दिखाएगी, बट उनके बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट नहीं होगा. ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द बिजनेसमैन. और कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. वेरी सिंपल. ओनर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है अपने बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलेंगे, एंड इट्स फॉर्मूला इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. ओके, देन और एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कैपिटल के अंदर, ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स मानो मिस्टर ए है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस चला रहे हैं. ओके, वो ट्रेडिंग के बिजनेस के अलावा कुछ नहीं करते, नौकरी नहीं करते, कुछ भी नहीं. तो उनके जो निजी खर्चे हैं या पर्सनल एक्सपेंस है, उसके लिए उनको पैसा लगता है, तो वो पैसा बिजनेस से लेते हैं. तो वो जो पैसा बिजनेस से बाहर लेके जाएंगे उसको ड्राइंग बोलेंगे. ओके, ये ड्राइंग अमाउंट जो होता है दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें से ये ड्राइंग अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा. डेटर्स, सिंपल, पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, ही ओज मनी टू बिजनेस. क्रेडिटर, पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेस्ड, बिजनेस ओज मनी टू हिम. ये हमने पहले भी समझा हुआ है फ्रेंड्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कॉस्ट एसेट के एक्वायरिंग के लिए लगता है, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने लिए एसेट खरीदना चाहती है. जब वो एसेट खरीदते हैं, जो भी पैसा उस एसेट में लगेगा, परचेस प्राइस, वैट, देन एक्साइज वगैरह, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मानो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडर का एग्जांपल ले लेते हैं वापस से. वो अपना माल बेचता है, तो वो अपने दुकान में मानो कोई एम्प्लॉय रखता है, तो एम्प्लॉय को वो सैलरी पे करेगा, तो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. या वो कोई ग्राहक उससे माल खरीदने आता है, उसको डिस्काउंट देता है, मानो कैश डिस्काउंट देता है, तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जनरली एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विस. डिस्काउंट का एग्जांपल याद रखिए. Deferred revenue expenditure. Expenditure is of revenue nature, but benefits of expenses is available for more years. मानो
आज के डेट का एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने अभी कैश पेमेंट डिस्करेज करने के लिए डिस्करेज करने कर गवर्नमेंट ने अभी कैश डिस्करेज किया था। तो पेटीएम ने अपना हेवी एडवर्टाइजमेंट दूसरे ही दिन, अब सारे पेपर में देखोगे तो जारी किया था। तो वो जो पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर होगा वो उनको एक दिन के लिए या एक साल के लिए बेनिफिट नहीं करेगा, वो लाइफ लॉन्ग उनको बेनिफिट करेगा। सो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट। और उसके बाद एक टर्म है दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स एन अलाउंस और कंसेशन रिसीव्ड और पेड। 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। एक तो कैश डिस्काउंट, मानो मैं ट्रेडर हूँ, मुझसे माल खरीदने कोई आता है, वो कैश में पेमेंट करता है तो आई गिव हिम डिस्काउंट, क्योंकि इमीडिएटली मेरा एसेट रियलाइज हो रहा है, दैट इज़ आई एम गेटिंग कैश, तो दैट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता है। मानो कोई ट्रेडर है, वो अपनी उसका वो बच्चों के खिलौने बेचता है, उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन मानो कोई ग्राहक क्रेडिटर कोई डेटर आता है, वो उससे होलसेल में माल उठा के ले जाता है, तो उसको मानो 1000 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, तो उसको वो डिस्काउंट देगा। तो उस डिस्काउंट को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देन सॉल्वेंट का मीनिंग होता है, मानो फ्रेंड्स, कि किसी पर्सन के असेट्स अगर लाइबिलिटीज से ज़्यादा हो तो उस पर्सन को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट। मानो किसी पर्सन के लाइबिलिटी उसके एसेट्स से ज़्यादा है तो दैट पर्सन वुड बी नोन एज इंसॉल्वेंट। अकाउंटिंग ईयर जनरली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इंडिया में अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। गुडविल reputation of firm in market, that is known as goodwill. Then now let's see few accounting concepts, conventions and principle. Accounting concepts, first है उसमें business entity concept। और business entity concept का ये मतलब होता है कि business और उसका proprietor ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर डिफरेंट। मानो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं, उसमें प्रोप्राइटर का निजी खर्चा नहीं आता है, दैट इज़ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का लॉजिक ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आप उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस्ट कंसेप्ट। देन गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट का मीनिंग होता है कि बिजनेस आज मैंने चालू किया है तो इट्स एन अजम्पशन दैट मुझे 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद उसको रैप अप नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस वुड हैव एन इनडेफिनाइट लाइफ, मतलब वो सालों साल बिजनेस मेरा चलता ही रहेगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिसीवेबल रिकग्नाइज होते हैं दैट आई वुड बी एबल टू कन्वर्ट इन कैश, मतलब उसका मुझे पेमेंट आएगा, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन कंसेप्ट। देन अक्रूवल कंसेप्ट होता है जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा ना वो ट्रांजैक्शन पहले ही रिकॉर्ड होगा, उसके अगेंस्ट जो कैश आएगा बाद में, वो कैश बाद में रिकॉर्ड होता है। अक्रूवल कंसेप्ट का यही मीनिंग होता है कि एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली रिकॉर्ड दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डुअल एस्पेक्ट का मीनिंग होता है dual aspect means every transaction will have 2 aspect, one is the debit aspect and second one is credit aspect. For example मैंने goods सेल कर दिए तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मानो एक एंट्री डेबिट में जाएगा और एक एंट्री क्रेडिट में, दैट इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट। देन
आई गेस एक कंसेप्ट हमारा छूट गया है, दैट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग होता है, मानो मैंने कोई एसेट मानो कोई किसी एसेट मैंने मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी का MRP है 1 लाख, बट मैंने उसको परचेज़ किया है 90,000 में। मुझे सेलर ने 10,000 का कैश डिस्काउंट दे दिया। ओके, सो दैट 10,000 वुड नॉट बी won't be reflected in my books of accounts. ओके, तो मेरा जो कॉस्ट होगा दैट वुड बी 90,000। 1 लाख मेरा कॉस्ट नहीं होगा, मेरा कॉस्ट होगा 90,000। सो दैट मीन्स asset should be recorded at its actual cost of acquisition and not at its MRP. Okay, then now let's go to the last slides, which is about the convention of consistency. फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि अगर मैं कोई मेथड फॉलो करूँ रेवेन्यू रिकग्निशन का, सो दैट वुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 बेसिस पे रख सकते हो आप, वन इज़ द कैश बेसिस एंड वन इज़ द अक्रूवल बेसिस। तो अगर मैंने एक बार एक मेथड चूज़ कर लिया तो आई कैन नॉट स्विच टू अनदर मेथड डायरेक्टली, आई नीड टू हैव वैलिड रीजंस फॉर दैट स्विचिंग। तो वो जो एक मेथड हम लोग मानो कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे जो हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है दैट यू शुड रिकग्नाइज लॉसेस इमीडिएटली। मानो फॉर एग्जांपल मैंने डेटर्स को गुड्स सेल कर दिए, मगर मानो डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसको जो भी पैसा मैंने दिया है वो अभी कैश में रियलाइज नहीं होगा। So in that case, I should write off the balance amount in that particular debtor's account. That is, I will recognize that amount as a bad debt. In simple terms, conservatism means make provision for all the losses. Debtors का example आप ध्यान रखिएगा। Convention of disclosures. कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस का जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है या जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। मानो कोई कंपनी है वो एयर पोल्यूट कर रही है, तो कंपनी पे केस डाल दिया किसी ने, तो वो जो केस चल रहा है दैट वुड बी डिस्क्लोज्ड। मतलब उसको कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये मुकदमे हम पे चल रहे हैं। दैट इज़ नोन एज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब होता है कि समथिंग विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर। सो कंपनी को हर एक अमाउंट जो इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट कर सकती है उसको डिस्क्लोज करना, उसको सेपरेटली दिखाना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मानो किसी कंपनी ने फाइन पे किया है 10 लाख रुपीज़ का, एंड कंसिडरिंग द कंपनीज नेटवर्थ दैट 10 लाख इज़ कंसिडर्ड एज मटेरियल, तो कंपनी को वो 10 लाख अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से दिखाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है ashwini.nirgude@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7350290465। थैंक्स फॉर वॉचिंग।